India is a land of dreamers, followers, influencers, achievers, and filmy heroes. And in this process, everybody wants to live someone else's life. The journey of every individual begins with a hope to become successful. Maybe like a successful engineer, doctor, bureaucrat, scientist, businessman, or an actor. Do you think what I'm saying is the right definition of success? Sir, do you agree on that? No. Hello, everyone, and welcome to the show. Sir, what kind of a world do you see on a daily basis around you? The world full of chaos, construction, destruction, lot of humans and few animals. What is the difference between construction and destruction? Construction can never happen without destruction. And right now, I believe we are into the phase of destruction, not construction. That means we are not heading on the right direction towards nation building? See, according to me, before nation building, we have to understand who all comes together and make the nation. It's all human. So it's not the problem never lies in the nation. The problem always lies in the people. So it is very important that the correction should be done in the humans, the people of the nation. We have to make them more aware, civilized, and understand their contribution. What should be their contribution towards nation building? Why do you say so? Because there are too many actions happening these days. There are investment coming from foreign countries. There are companies coming from foreign countries. देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो पेपर पे, स्पीच में, आर्टिकल में, न्यूज़ में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पर हकीकत ये है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस देश में जिस तरीके से चल रहा है, दैट डेफिनेटली इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। बिकॉज़ ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगेगा आपको, लेकिन एक ही तरीका है जिसके भरोसे कोई भी देश मजबूती से खड़ा हो सकता है हमेशा के लिए, और वो है एजुकेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया द करंट फोकस इज नॉट ऑन एजुकेशन। Okay. Then, according to you, how can we become a powerful nation? Till the education is not in the foundation of any nation, it's very difficult for any nation to stand, survive and fight in the longer run. अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो सबसे पहले आपके जो नागरिक हैं वो अशिक्षित होंगे। अशिक्षित का मतलब इलिटरेट होना नहीं होता, वो शिक्षित होकर भी अशिक्षित होंगे। जहाँ कॉमन सेंस दांव पे लग जाएगा, जहाँ सिविक सेंस दांव पे लग जाएगा, जहाँ ह्यूमन बिहेवियर दांव पे लग जाएगा। जब ये सब चीज़ें दांव पे लगेंगी तो आप इमारत बनाएं, आप तोप बनाएं, आप पैसा बाहर से ले आएं, लेकिन जो उसको यूज़ करने वाले लोग हैं अगर वो शिक्षित और सभ्य नहीं हैं, then everything will fall down, everything will ripped apart, maybe today, maybe tomorrow, or may not be today, may not be tomorrow, but very soon it will fall. Sir, how do we define education then? ओ ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बहुत सारी इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं, जितना मैंने अपने जीवन में पढ़ा है और जो मैं समझा हूँ। सबसे पहला काम जो एजुकेशन करती है इनडायरेक्टली, वो होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। Okay. जो आपके अंदर एक इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, एथिक्स, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम को भरती है। इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो चीज़ें आप तक आएंगी। उसके बाद एजुकेशन किसी भी बच्चे को ये क्षमता देती है कि वो सपना देखे, Okay. उस सपने के लिए लड़े, गिरे, फिर खड़ा हो, फिर लड़े, फिर उसे हासिल करे, और हासिल करने के बाद समाज को वापस दे। That's what the power of education is. That's what true education is. To believe that you can dream, you can fight for it, you can fail, get up, fight again, achieve it and give back to society. In short, शिक्षा किसी भी आम आदमी को आगे चलकर इस देश का एसेट बनाती है। How can a student get a quality education? आज के समय में जी, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन के पैरामीटर क्या होते हैं? सबसे पहले आपकी इमारत बहुत सुंदर होनी चाहिए, और अगर उसके नाम में इंटरनेशनल लगा है
तो वो एक कमाल की चीज़ होती है। उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत ही कलरफुल और सुंदर दिखनी चाहिए। ओके। उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आईवी लीग के होने चाहिए। अगर वो ग्लोबल लेवल ब्रांड्स हैं तो और भी सोने पे सुहागा है। ओके। उसके बाद उस पर एक विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है डायरेक्टर का, वो एक बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। उसके बाद उस पे बहुत सारी फ़ोटोज़ होनी चाहिए फॉरेन डेलीगेट्स की, बड़े-बड़े लोगों की जो आपके कैंपस में आए। फिर उसमें हाइलाइट्स होनी चाहिए, जैसे कि कौन से फ़िल्मी सितारे आपके कैंपस में आए फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए, कौन-सा रैपर आया, तो ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कॉलेज तक जाएँगे, तो उसके वेबसाइट के सेंटर में एक ब्लॉक होना चाहिए जिस पे प्लेसमेंट कितना गया, हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। उसके नीचे लिस्ट ऑफ कंपनीज़ होनी चाहिए जिसपे सबसे पहला नाम माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर मौजूद हैं, तो इसके माध्यम से आपको एक क्वालिटी एजुकेशन इस देश में मिल रही है, आज के दौर में। अनुराग जी, आपको नहीं लगता कि टीचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन के लिए? यानी ये इसलिए मैंने आपसे पूछा था, आप आज के दौर की बात कर रहे हैं या आज से 30 साल, 35 साल पहले की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये देश जो था वो गुरु का है, गुरुओं का है, स्कॉलर्स का है, फिलॉसफर का है, शिष्य का है, गुरु शिष्य के रिश्ते का है, गुरु दक्षिणा का है, ऐसा इसका बैकग्राउंड रहा है। पर जब एक ज़माने में जब गुरुकुल कल्चर हुआ करता था, तो बच्चों को जब पढ़ाया जाता था, तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स हो गई, लिटरेचर हो गया, आपके वेदास हो गए, ये पढ़ाए जाते थे। आप स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करें, आप एकेडमिकली कैसे ग्रो करें, आपके अंदर समाज में जीने की जो कला चाहिए, जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं, वो कैसे डेवलप होगी, आपका कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया जाए, ये इसके फाउंडेशन में हुआ करता था। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप आज के दौर की बात कर रहे हैं या पहले की? जी, तो जी, आज के दौर का तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। पहले के दौर में ये सब होता था, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी कॉलेज की नींव में जो होती थी, वो गुरु होता था, टीचर होता था। बहुत पहले की अगर मैं आपको बताऊँ, 90s, अर्ली 90s की बात बताऊँ, जब इस देश में इंटरनेट नहीं था, और आपके मोहल्ले में कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी या टीचर आ जाए और आपको मालूम चल जाए कि यार फलाने घर में कोई टीचर आया है, तो आप अपनी किताब लेके पहुंच जाते थे, सर 2 सवाल हैं, आप बता देंगे? या आपको मालूम चल जाए कि भाई 10 किलोमीटर दूर एक बढ़िया टीचर आया है, वो अपना पढ़ाता है, तो आप डिस्टेंस नहीं देखते थे, आप साइकिल आप निकालते जाते थे थे। और आप पहुंच जाते थे पूछने के लिए कि सर मैं आ सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ आपको। तो पहले संस्थान बाद में आता था, गुरु पहले आता पहले था। आता था। आज आप देखिए, स्टूडेंट कोई भी एमबीए कॉलेज ज्वाइन करता है, तो आपने कभी सुना है किसी के मुंह से स्कूल को लेके, कॉलेज को लेके, या पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए को लेके कि यार वो वाला कॉलेज ज्वाइन करना, उसमें वो 2 टीचर हैं, वो बड़ा गजब का पढ़ाते हैं? नहीं सुना होगा। लेकिन यही डेफिनेशन आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुनते होंगे, करेक्ट। यार फलाना कोचिंग ज्वाइन करो, वहां पे 4 टीचर बड़े गजब के हैं। ट्रू। क्योंकि स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन बिल्ड्स कैरेक्टर बिकॉज इट टेक्स टाइम। 12 years in school and 4 years in graduation or 3 years in graduation. Vis-a-vis in coaching is a 6 months or a year association, जिसमें आप it's a result oriented game. करेक्ट। तो स्कूल एंड कॉलेज बिल्ड्स कैरेक्टर, डेवलप द इंट्रिंसिक क्वालिटीज। तो बच्चा, मुझे आज तक 20 साल के करियर में ऐसा सुनाई नहीं दिया है किसी ने कोई एमबीए कॉलेज या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई डिपार्टमेंट इसलिए ज्वाइन किया हो कि वहां पर एक फलाना टीचर पढ़ाता है। द एवरी पर्सन ऑब्जेक्टिव इज द सीटीसी पैकेज प्लेसमेंट, विच कंपनीज आर कमिंग एंड विच कंपनीज आर नॉट कमिंग। ओके। तो ये डिफरेंस हो गया है पहले की एजुकेशन में और आज की एजुकेशन। पहले तो वेबसाइट भी नहीं होती थी, पर कॉलेज शानदार होते थे, टीचर का नाम पता होता था। करेक्ट। आज इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को, और मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं इंटरेस्ट है। इंक्लूडिंग पेरेंट्स। अरे पेरेंट्स का पहला सवाल ही होता है कि सर प्लेसमेंट कितने की लगेगी। तो टीचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, समाज ने उसको ऐसा उठाया और ऐसा साइड में कर दिया। बैठा दिया। सर, टीचर कौन होता है? इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन, इट्स अ सेंसिटिव क्वेश्चन। आई थिंक लोगों को समझना पड़ेगा कि टीचर कौन होता है। मेरे हिसाब से, फॉर मी इट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल क्वेश्चन। टीचर इज वेरी सेल्फलेस। टीचर इज इन द फाउंडेशन ऑफ एनी नेशन। टीचर is the strongest contributor. Teacher is the torch bearer of the society. Teacher is the bridge between the parents and the society. Teacher is someone who always believe in the student. Teacher who always stand by the student. Teacher who is always there to help you and correct you. Teacher is the biggest contributor in any child's life. Teacher is someone who always transform a human into a better human, a civilized human, an aware human. In short, teacher is someone who always transform a child into a dreamer and convert a dreamer into an asset for the nation.
That's what teacher is all about. Wow. Sir, if teacher is having such a great profile in the society, why nobody wants to become one? समाज में, खासतौर से हिंदुस्तान में, कुछ भी बनने के लिए समाज का झुकाव उस प्रोफेशन की तरफ होना चाहिए और उसके बारे में सुगबुगाहट, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी गहमा गहमी होनी चाहिए। तब एक बंदा या एक बच्चा किसी भी प्रोफेशन की तरफ आकर्षित होता है। Correct. करेक्ट। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी हैव स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग टीचर्स। Why do you say, sir, we have stopped celebrating teachers? We do celebrate Teachers' Day, and it's a noble profession. चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि साल में एक दिन तो ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि यार टीचर होता है। लेकिन सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि, चलिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। एक रूम लीजिए और उस रूम के अंदर आप जज को, डॉक्टर को, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल जज, एक्टर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, पीपल फ्रॉम डिफेंस और जितने भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ओनर, उनको बैठाइए और एक टीचर को बैठाइए और अपनी आंख बंद करिए और मुझे बताइए कि आपको उसके उन सबके बीच में क्या टीचर दिखाई दिया? ये सवाल सबको अपने आप से पूछना चाहिए Correct. कि क्या उस कमरे में आपको टीचर दिखा? नहीं दिखेगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वाई वी स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग। तो मैंने थोड़ी देर आपसे पहले क्या कहा, समाज में किसी भी प्रोफेशन का चुनाव करने के लिए समाज का झुकाव उस तरफ होना बहुत जरूरी है। जैसे इस देश में इंजीनियरिंग का एक दौर आया सन 2000 में, आईटी बूम और इंजीनियरिंग को लेके लोगों में, उसका लड़का इंजीनियर बन रहा है, उसका लड़का इंजीनियर, तो इंस्टीट्यूशंस भी खुल गए और धड़ाधड़ लोग इंजीनियर बनने लगे। इस तरह का झुकाव कभी भी आपने समाज में टीचर को लेके नहीं सुना होगा। True. तो आप जो पूछ रहे हैं ना कि वाई वी स्टॉप सेलिब्रेटिंग टीचर, यहाँ टीचर खुद को सेलिब्रेट नहीं कर रहा और आप बोल रहे हैं कि वी स्टॉप सेलिब्रेटिंग टीचर। सो दैट्स अ रीजन दैट इट्स ऑल देयर। तो प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम लाइज इन द माइंडसेट एंड हिपोक्रेसी। क्या मतलब? चलिए आप अपने बचपन में जाइए और बचपन में जब आप 3-4 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, तो घर में कोई मेहमान आया तो मेहमान अक्सर पूछते हैं बच्चों से कि क्या बनोगे बड़े होके? 4-5 साल का बच्चा अमूमन वो जवाब दे पाता है जितना उसने अब तक देखा है, सुना है, रियल लाइफ में देखा है या टीवी पे देखा है। तो जवाब देना शुरू करता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, पुलिस ऑफिसर बनूंगा, पायलट बनूंगा। आप उसके मुंह से कभी भी गलती से टीचर नहीं सुनेंगे। ये सब अपने आप एनालिसिस करिएगा, जितने भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, बच्चा कभी टीचर नहीं बोलता। और अगर गलती से बोल दिया तो वहां बैठे के लोगों के बीच में सुगबगाहट हो जाती है उतने छोटे से बच्चे के सामने, अरे टीचर कौन बनता है? करेक्ट करने लगते हैं। तो हमारे देश में ना ये मान लिया गया है, अरे आप अपने जीवन का 30, 32, 35 साल अगर जी चुके हैं तो अपने जीवन को पलट के देखिए और आप अपने घर, मोहल्ले, आस पड़ोस, रिश्तेदारों के बीच में कभी ये महसूस करिए और मुझे बताइए कितनी बार इस पे चर्चा हुई कि भाई हमारा बेटा जो है वो टीचर बनना चाहता है, या इसको लेके चर्चा चल रही है कि भाई वो टीचर बनेगा, उसने ऐसा बोला है और उसने तय कर लिया है। कोई बच्चा तय नहीं करता उसको टीचर बनना है। ये मान लिया गया है कि टीचर ना कोई जॉब होता है, टीचर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और टीचिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ऐसा मान लिया गया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नोबडी टॉक्स एनीवेयर अबाउट टीचर्स। बट ये इतना माइंडसेट चेंज हुआ कैसे? ये इसको माइंडसेट चेंज नहीं कहते हैं, इसे एब्सेंट माइंड कहते हैं। ओके। जब आप जहन में ही नहीं हो तो चिंतन कैसे होगा? इस पे बात ही नहीं हो रही है कि टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों नहीं है, हाँ, इस पे चर्चा क्यों नहीं है। अगर आपका सवाल मुझसे ये है कि इसको लेके चर्चा क्यों नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने थोड़ी देर आपसे पहले बोला कि वी डोंट सेलिब्रेट टीचर्स। करेक्ट। आप किसी भी महफिल में जाएं, बचपन में बहुत शादियां अटेंड करी होंगी, टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है और टीचर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको समाज में खुलकर इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता। लेकिन अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये आईएएस आईपीएस कहाँ से बनते हैं? एक टीचर की वजह से। करेक्ट। पुलिस ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी एसएसपी बनते हैं, किसकी वजह से? एक टीचर की वजह से। एक डॉक्टर इंजीनियर किसकी वजह से बनते हैं? टीचर की वजह से। और उसी टीचर को वहां महफिल में रखिए, उसको इतने ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ मिलवाया नहीं जाता।
और आयरनी ये है कि टीचर खुद कटता है मिलने से कि कैसे बताऊं कि मैं एक टीचर हूं। तो कहीं ना कहीं टीचर ऑल्सो स्टॉप्ड बिलीविंग इन देमसेल्फ कि यार टीचिंग इज अ प्रोफेशन, आई शुड बी प्राउड ऑफ इट। जिस घर में पेरेंट्स टीचर है वो अपने बच्चे को कभी नहीं चाहते कि वो टीचर बने। तो ये तो सारी मैंने आपको ये बता दिया कि समाज में ये हो रहा है। सवाल है क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? तो वो इसलिए नहीं बनना चाह रहे हैं कि पहली बात, इस शब्द के साथ सिर्फ पेपर के ऊपर रिस्पेक्ट जुड़ी है। दूसरी चीज, वन ऑफ द मोस्ट अंडरपेड प्रोफेशन, लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन, सबसे कम सुविधाएं टीचर को दी जाती हैं। टीचर का कोई एसोसिएशन नहीं होता। जिस तरह से कॉर्पोरेट के अंदर इवेंट्स होते हैं, लोगों को 5 स्टार प्रॉपर्टीज में लेके जाया जाता है, एनुअल डे मीट होता है, हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर का सारा सेलिब्रेशन स्कूल कैंपस के अंदर हो जाता है। क्लासरूम के अंदर टेबल लग जाएंगे, उस पर खाने लग जाएंगे, ये एनुअल डे सेलिब्रेशन हो गया। तो उसकी पूरी जिंदगी का जो सेलिब्रेशन है वो स्कूल कैंपस के अंदर या कॉलेज कैंपस के अंदर करा लीजिए। पर कोई उनको एक्सपोजर देने पे बिलीव नहीं करता, कोई उनको अपलिफ्ट करने पर बिलीव नहीं करता। जबकि टीचर नीड्स लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द पीपल। पर ऐसा नहीं है। और अब तो सिचुएशन और भी गंभीर हो गई है। अब तो ऐसा हो गया कि टीचर पे हाथ उठाने से पहले लोग एक बार भी नहीं सोचते कि वो गुरु को मार रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। So those who are already in this profession, those teachers who are already in this profession, वो क्यों हैं? किसी मजबूरी के तहत है या willingly है? देखिए, हमारे देश में ना 2 तरह की कहावत कही जाती है। एक कहा जाता है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और फिर उसके आगे कहा जाता है जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचर बन जाते हैं। ये हमारे देश में बड़ा ओपनली बोला जाता है टीचिंग फ्रेटर्निटी के अंदर। तो जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं वो मुख्यतः 2 ही वजह से होते हैं। पहला, या तो बाय चॉइस होते हैं या बाय फोर्स होते हैं। जो बाय चॉइस है वो सही मायने में टीचर है। क्योंकि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर आप बाय फोर्स रहें। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, हैज टू बी बाय चॉइस। कई बार ऐसा होता है हिंदुस्तान में कि अगर आप इस देश की जो शिक्षा पद्धति है और जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अगर आप उनको एसोसिएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए आपने 3 से 5 साल किसी इंडस्ट्री में बिता दिए, अब आपको दुनिया की किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। True. अगर आपने 5 साल आईटी में काम कर लिया तो आप बैंक में काम नहीं कर सकते। 5 साल बैंक में काम कर लिया तो आप एजुकेशन में काम नहीं कर सकते हैं। चलता रहता है ये, विच इज वेरी वेरी सैड टू सी। उसका प्रॉब्लम ये होता है कई बार यंग एज में बच्चा एजुकेशन सेक्टर में जाता है, मान लीजिए 22, 23, 24 साल की उम्र में गया और उसने पढ़ाना शुरू किया और उसको मजा आ गया। तब तक इतनी समझ नहीं होती कि इसमें ग्रोथ कितनी होगी, क्योंकि उसको पढ़ाने में मजा आ रहा है, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, मजा आ रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, बच्चे खुश हैं, और वो साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। और कई बार कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होता और तब तक होते होते 5 साल बीत जाता है। उसके बाद उसके लिए किसी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कई बार इंडस्ट्री में लोग इसलिए भी आते हैं, मैंने बहुत वियर्ड रीजन सुने हैं लोगों के मुंह से। टीचिंग फ्रेटर्निटी में सुना है मैंने, स्पेशली कॉलेजेस के अंदर, कि हेल्थ इश्यूज थे तो आ गए, तो क्या करेंगे, तो सोचा पढ़ा लेते हैं। कई बार लोग सुकून चाहिए, बहुत भागा दौड़ी नहीं चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, टीचर बन जाते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अब सब कुछ करके देख लिया पर कुछ हुआ नहीं, तो आखिरी में लगा कि यार चलो पढ़ा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मुझे जवाब लोगों ने दिए कि हाउ कम दे लैंड अप इनटू एजुकेशन सेक्टर। और कई बार लोग मुझे बहुत खुला बोलते हैं कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ और करने की, हो जाएगा तो निकल जाऊंगा। तो ये उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये सिस्टम का दुर्भाग्य है कि हमने उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म बनाया कि उनके अंदर ये बातें आ गई कि भाई इसमें कोई करियर नहीं है। और ये बात ओपनली बोल रहा हूँ, सुनने में कितनी भी बुरी लगे, पर यही सच्चाई है। टीचर के लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ माइंडसेट और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते इस देश में। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू, एवरी टीचर दैट हैज जॉइन्ड अ स्कूल, दैट इज द लास्ट करियर ऑप्शन फॉर देम, ओनली करियर ऑप्शन फॉर देम। ओके ओके। देखिए, स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी लेयर में जहां जहां जो टीचर जिस डिपार्टमेंट में है, ये बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि इसके बाद स्विच और इंडस्ट्री स्विच करना और अपॉर्चुनिटीज विद इन द इंडस्ट्री ढूंढना, इट बिकम्स चैलेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक तो पैकेजेस ऑफर नहीं होते, सैलरीज टाइम पर नहीं आती। इसके आप ये मुझे बताएं ना, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको क्या लगता है कोई टीचर प्रिंसिपल बन जाता है? नहीं। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मुझे बताइए कितने टीचर ऐसे हैं जो आगे चल के डायरेक्टर बन जाते हैं? शायद नहीं। हाँ, करेक्ट।
या जिस तरह से कॉर्पोरेट के अंदर प्रमोशन होते हैं कि भाई आज आपने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया, फिर आप मैनेजर बने, फिर आप सीनियर मैनेजर बने, फिर आप रीजनल हेड बने, फिर आप प्रोसेस है। टीचर के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। टीचर के लिए कोई प्रोसेस नहीं इन द प्राइवेट सेक्टर। तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बता पा रहे हैं। कई बार सारे टीचर अच्छे नहीं होते, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप अपने बचपन में जाइए, मैं अपने बचपन में जाता हूं, आप अपनी जवानी में जाइए और आप ये महसूस करेंगे हर स्तर पर, हर क्लास में आपका कोई एक फेवरेट टीचर था। करेक्ट। पूरा स्कूल फेवरेट नहीं होता, कोई एक फेवरेट टीचर होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी टीचर खराब है, पर हर किसी का कोई एक ही फेवरेट टीचर होता है। ऐसा क्यों होता है? सो द आइडिया इज देयर आर पीपल हु आर इनटू द इंडस्ट्री बाय चॉइस, जो बाय चॉइस है। देयर आर पीपल हु आर वेरी हैप्पी विद द लाइफ, दे आर वेरी हैप्पी टू टीच, दे हैव कंटेंटमेंट इन लाइफ की बहुत एस्पिरेशन नहीं भाई, बहुत मजा आ रहा है हमें। लाइक H.C. Verma, one of the most respected teacher in our country. Correct. He's happy what he's doing. He's still teaching in Kanpur. Entire life he taught in IIT Kanpur. Now independently he runs an NGO and teaches people. We have Khan sir. We have Anand sir. There are people out there who are teaching willingly and happy to teach. आप वॉल्यूम पे मत देखिए, आप इंटेंशन देखिए। They are happy to teach. So those who are in the industry and doing good independently, they join the industry by choice. But most of the teacher doesn't come into the industry by choice. पर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप मुझे बताइए, मुझे अगर मैं गलत हूं तो, आपको प्राइवेट स्कूल में 90% जो टीचिंग स्टाफ है वो आपको फीमेल मिलेगा। हाँ, करेक्ट। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सोचिए ऐसा क्यों है। अभी हम मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि जितने लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, बाय चॉइस हैं, बाय फोर्स हैं, तो उसमें वियर्ड रीजन होते हैं। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, टीचर अच्छा होना चाहिए, वजह कुछ भी हो। आप अपना काम अगर बेहतरीन कर रहे हैं तो वजह इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके 10वीं में गणित में कितने नंबर थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप शानदार गणित पढ़ा रहे हैं तो किसी को आपके नंबर में इंटरेस्ट नहीं है। करेक्ट। तो लेकिन रीजंस क्या होते हैं? हस्बैंड वर्किंग है तो मेरे पास टाइम है, घर के पास में है तो ज्वाइन कर, पढ़ाने का शौक है चले जाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी चले जाते हैं। यही होता है ना, ऐसी वजह होती है। तो इन वजहों के बेसिस पे एजुकेशन सेक्टर खड़ा है। सर, क्या हम उन चैलेंजेस पे फोकस कर सकते हैं जो टीचर्स फेस करते हैं? सर, बहुत लंबी फहरिस्त है जो टीचर चैलेंजेस फेस करता है। सबसे पहला चैलेंज आज का टीचर फेस कर रहा है क्लास के अंदर। सबसे पहला चैलेंज, क्लास को डिसिप्लिन के साथ कंडक्ट करना, सिलेबस पूरा करना, बच्चों के अटेंशन को ग्रैब रखना, उनका रिटेंशन बना रहे, इस पर ध्यान देना, क्लास का डिसिप्लिन बना रहे, ये सब एक टीचर को क्लास में करना है उस जनरेशन के साथ जो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज हो गया। जहां पर गूगल पे हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टीचर क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर गलती से गलती नहीं कर सकता। इट कैन बी इमीडिएटली क्रॉस चेक्ड। करेक्ट। द कंप्लीट फोकस इज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। बच्चे को कितना आ रहा है, कितना वो समझा, वो मतलब नहीं। मुझे मेरे कोई दोस्त बता रहे थे कि अब स्कूलों की ये हालत हो गई है कि पास परसेंटेज दिखाने के लिए क्लास में टीचर पढ़ाने के बाद 30-35 क्वेश्चन की लिस्ट दे देता है। Correct. और बोलता है इसको तैयार कर लीजिए, इसी में से पेपर आएगा। जी। पेरेंट इसमें खुश है कि उसके 80% आ गए, A+ आ गया, 95 नंबर आ गए, इसमें भी खुश है वो। जहां पर स्कूल में पढ़ाने के बाद लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दी जा रही है कि इसको पढ़ लीजिए, इसी में से पेपर आएगा। तो आपने एग्जाम का प्रेशर हटा दिया, कॉम्पिटेटिव माइंडसेट हट गया। पेरेंट अभी वहीं अटका हुआ है कि 80% नंबर आ गए कि 65 आ गए, तो कम क्यों आ गए कि ज्यादा क्या आ गए। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो गई है? टू कंडक्ट अ सेशन, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है। उसका पहला चैलेंज यही हो गया। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है एजुकेशन सेक्टर में। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप वन स्कूल टू अनदर स्कूल हॉप कर सकते हैं। करेक्ट। उसके लिए भी डिस्टेंस कंस्ट्रेंट हो गया है। अगर आप मुंबई में जूहू में रहते हैं तो आप लोअर परेल का स्कूल नहीं ज्वाइन करेंगे, कर सकते। करेक्ट। तो एक डिस्टेंस इज अ कंस्ट्रेंट कि इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया कि लोग चाहते हैं घर के पास का स्कूल हो। पेरेंट्स भी यही चाहता है घर के पास का स्कूल हो। घर के पास तो एक ही स्कूल है, जाना ही है वहां। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आई एम प्रीटी श्योर टीचर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में। हाउ टू कंडक्ट अ सेशन, हाउ टू डिलीवर द लेक्चर, it's a very important technique that you have to deal with it because the generation is changing. अगर आप अर्ली 2000 में जैसे पढ़ाते थे और आज भी आप वैसे ही पढ़ा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा आपकी क्लास में बैठेगा, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जा रहा है। तो हाउ टू कीप द क्लास अलाइव
इट्स बिकम अ चैलेंज फॉर दैट टीचर नीड्स अ ट्रेनिंग. कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर. हाउ अ टीचर कैन यूज अ टेक्नोलॉजी इन द क्लास, उसके लिए कोई इसकी वर्कशॉप नहीं हो रही. नहीं है. उसको किसी भी तरह का एक्सपोजर नहीं दिलाया जा रहा. ना उसका कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हो और बेहतर कैसे हो, बच्चों के साथ अब वो संजीदा कैसे रहे, सेंसिटिव कैसे रहे. टीचर ऑल्सो नीड ट्रेनिंग. दीज ऑल थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. दीज आर द चैलेंजेस फेस बाय द टीचर. आई एम श्योर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इनका कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, कोई मेडिकल कवर नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टीचर्स नेवर गेट द सैलरी ऑन टाइम. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो 15 तारीख को पगार आती है. इस देश में ये सब हो रहा है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीचर जो है वो अपना काम निस्वार्थ भाव से करता रहे. क्या प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की सेम सिचुएशन है? जमीन आसमान का फर्क है सर. देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टेट रन एंड सेंट्रल. ओके. जिसके लिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनईटी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है. उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं. पहली चीज, यहां पर आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद एलटीए भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, Okay. साल की पेड लीव्स मिलती हैं गवर्नमेंट सेटअप में. आपकी अगर किसी भी तरह की ड्यूटी लगी है तो उसका पैसा मिलता है. अच्छा. अगर आप ऑफिशियल काम से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका पैसा मिलता है. कोई भी प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही आपकी नौकरी नहीं खा सकता कि उठ के आया और बोला भाई कल से मत आइएगा. चांस ही नहीं है. अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो पहले वो आपको मेमो देगा, मेमो पे आप जवाब देंगे, फिर उस पर इंक्वायरी बैठेगी. अगर इंक्वायरी प्रूव कर पाई कि टीचर गलत है तो वो सस्पेंड होगा. टर्मिनेट अभी भी नहीं हो रहा. जब तक कि बहुत ही हीनियस क्राइम ना हो जाए, बहुत बदसलूकी ना हो जाए किसी बच्चे के साथ, तब तक सस्पेंड होता है. बहुत एक्सट्रीम केस में टर्मिनेट होता है. तो देयर इज अ प्रोसेस टू इट Okay. Okay. इन द बोथ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल. एंड देन दे हैव अ मेडिकल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. सीजीएचएस करके एक स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, विच सपोर्ट देम. जैसे मेडिक्लेम होता है, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं. 50-80% वेव ऑफ हो जाता है, गवर्नमेंट पे करती है. Okay. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे गेट गुड सैलरीज. देखिए, अभी मैं गुड सैलरी बोल रहा हूं तो आपकी आंखें बड़ी हो गई. आपको लगा 50 लाख का पैकेज होगा. ऐसा नहीं है सर. मैं गलत, मुझे बहुत आइडिया नहीं, लेकिन मैं फिर भी अंदाजे से बता रहा हूँ. किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, स्पेशली प्रिंसिपल की सैलरी 2 से 2.5 लाख, 3.5 लाख के आसपास होती है. अच्छा. Okay. और एक पीजीटी की सैलरी 1.80 के आसपास होती होगी, और एक टीजीटी की सैलरी 1.5 के आसपास होती होगी, या 1.30 के आसपास होती होगी. चलिए, बहुत अच्छी सैलरी पकड़ ली मैंने, और 2.5 लाख की सैलरी मैंने बोल दी टीचर की. कितना पैकेज हुआ सर? 30 लाख. 30 लाख. किस उम्र में? 50 साल की उम्र में. 50 साल की उम्र में 30 लाख का पैकेज है, जो प्राइवेट सेक्टर में 28 साल के लड़के की सैलरी होती है. आराम से. और हमारी आंखें बड़ी हो गई, कितना पैसा. तो आप ये सोचिए कि आप इसको इतना पैसा बोल रहे हो, मतलब टीचर को पैसा देने में पूरा समाज की जान जाती है. इतना पैसा कैसे? और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में, उनके पेरेंट्स की सैलरी इससे ज्यादा होगी. हाँ, करेक्ट. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, स्कूल के अंदर कितनी सैलरी होगी? 35,000, 50,000, 65,000, 70,000 बस. ये मैं बहुत अपर साइड बोल रहा हूँ. चलो सर, आप लाख पकड़ लीजिए, तो साल का कितना हुआ? 12 लाख. 12 लाख रुपए. ये जस्टिफाइंग है आज के दौर में, जहां इन्फ्लेशन है, महंगाई, और हम सब इसकी बात करते हैं? सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम. दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द टीचर्स. There's a difference between the private institution and the government setup. प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या जॉब सिक्योरिटी या वी कैन से सेफ गार्डिंग देयर पॉलिसीज, ऐसी कोई सब्जेक्ट पे बात होती है? प्राइवेट सेक्टर में जी. ऐसा कुछ नहीं सर. लाला चला रहा है. स्कूल कॉलेज जो है वो लाला चला रहा है, और लाला के मूड पे डिपेंड करता है. देखिए, लाला जो है वो स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, एमबीए कॉलेज चला रहा है. उसके लिए वो बिजनेस है, क्योंकि लाला है. वो टीचर नहीं है, वो लाला है. और मजबूरी ये हो गई है कि नौकरी बचाने के लिए टीचर जो है, ना चाहते हुए भी चापलूसी करनी पड़ रही है. और ये मैंने अपनी आंख से देखा है 20 साल करियर में बहुत बार, और ये एकदम रूटेड हो चुका है. जबकि मैं ऐसा मानता हूं, टीचर जो है वो स्वाभिमानी होना चाहिए. अगर वो अपने काम में जबरदस्त है तो जिंदगी में वो कभी खाली नहीं बैठेगा. जब तक उसकी कलम चल रही है तब तक वो पैसा बनाएगा, बिना कोचिंग करे भी. ओके. लेकिन मैंने अपनी आंख से दृश्य देखे हैं कि लाला जो है वो कैंपस में घूम रहा है और टीचर जो है वो आगे पीछे हैं. तो कोई ऐसा नहीं है. लाला जी की बुआ हो सकती है टीपीओ, और एक डायरेक्टर रूम होता है.
जो गद्दी है, जो उत्तराधिकारी जो है वो आके बैठेगा उसके ऊपर, ना जिसको बोलना आ रहा है, ना जिसका टीचिंग से कोई रिलेशन है, ना उसकी समझ में कुछ आ रहा है, लेकिन क्योंकि लाला का बेटा है तो गद्दी तो वही संभालेगा। तो इंस्टीट्यूशन नहीं हो गया वो ऐसा यादव स्वीट हाउस हो गया कि आओ बेटा तुम बैठो अब तुम चलाओ। कोई एक इंसिडेंट हाँ आपको बिल्कुल, याद मैं है? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। मुझे ग्रेटर नोएडा बुलाया गया था किसी कॉलेज के इंडक्शन के लिए, और मेरा पोस्ट लंच जो था सेशन था, करीबन 350 के आसपास बच्चे थे, 150-200 के आसपास पेरेंट्स थे, 500-550 का ऑडिटोरियम था। तो मुझसे कहा गया कि सर आप लंच के पहले आ जाइएगा तो डायरेक्टर सर से भी मुलाकात हो जाएगी और बाकी जो स्पीकर्स हैं उनसे ही मिलिएगा। खैर मैं उस कमरे में पहुंचा जहाँ पे लंच सर्व होना था, और अमूमन मेरी आदत है कि मैं राइटर हूँ, थिएटर किया है मैंने, तो मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। तो मैं वहाँ चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। लाला जी आए, लाला जी जो थे वो 65 साल के आसपास रहे होंगे। सब लोग खड़े हो गए सम्मान में, मैं भी खड़ा हो गया। फिर लाला जी आके बैठे, लाला जी ने सबसे बातचीत करना शुरू किया। उनके साथ 2 लोग और आए जो मुझे बाद में पता चला, और उसमें से एक लड़का एक लड़की थे, और लड़की ने बिल्कुल ऐसी साड़ी पहनी हुई थी जैसे आप रिसेप्शन में जाते हैं किसी। अच्छा। हाँ, उनकी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 25-26 साल, और लड़के की उम्र ऐसी रही होगी 27-28 साल, 30 साल। खैर, तो जब वो लड़की आई तो अचानक से जितनी भी फीमेल टीचर्स थी वो लड़की के आगे पीछे होने लगी कि आप ये खाइए, आप ये खाइए, आप ये। तो जो टीचर आगे पीछे लगी थी उनकी उम्र कम से कम 45 के आसपास अच्छा। रही होगी, 50 के आसपास। खैर मैं देख रहा था ये क्या चल रहा है। फिर लाला जी ने अपना एक प्रवचन देना शुरू किया, और कुछ देर के बाद उन्होंने कुछ ऐसी लाइनें बोली जिसके बाद मेरा पूरी तरह से जो भरोसा था वो सिस्टम से उठ गया। उन्होंने बोला कि किसी ने पूछा कि सर फिर आगे के क्या प्लान है सर? तो लाला जी ने कहा कि सर अब तो देखिए हमने तो अपनी जो मेहनत करके बनाना था बना दिया, अब ये बच्चे संभालेंगे। तो बच्चे संभालेंगे मतलब जो लड़की साथ में आई वो उनकी बहू थी, और जो लड़का साथ में आया वो उनका बेटा था। तो बेटा बहू साथ में आए थे, और जो टीचर उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एमबीए कॉलेज है, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो उनके आगे पीछे, उस लड़की के आगे पीछे थे कि आप ये खाइए, आप ये खाइए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक तो मैं फिर भी झेल गया। मैं लंच किया और मैं ऑडिटोरियम के बाहर पहुंच गया। सेशन था 2:30 बजे का, मैं 2:20 पर वहां पहुंच गया। 2:20 का 2:30 हो गया, 2:30 का 2:45 हो गया, 2:45 का 3 हो गया। अंदर वेट कर रहे हैं लोग, और मैं एक टीचर हूं और मुझे पता है कि सबसे पहली चीज किसी भी टीचर के अंदर अगर होनी चाहिए वो है पंक्चुअलिटी। करेक्ट। मैं अपने जीवन में कभी किसी क्लास के लिए लेट नहीं हुआ, चाहे वो मैंने किसी भी स्तर की कोई भी क्लास पढ़ाई हो। तो मुझे जाके पूछना पड़ा कि क्या चल रहा है। तो एक मैडम जो है वो दौड़ते हुए यही बताने के लिए मैंने कहा कि सेशन तो मैं लूंगा नहीं अब, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ अ इंसल्ट टू ऑल द पीपल हु आर सिटिंग इन ऑडिटोरियम, और मैं लेट भी नहीं हूँ तो मैं किस मुंह से अंदर जाऊँ अब। तो मुझे पता चला कि लाला जी का बर्थडे था। तो लाला जी का बर्थडे था, उनकी केक कटिंग हो रही थी अंदर, उनको गिफ्ट देने के लिए सब लाइन में लगे हुए थे। कोई पैंट का कपड़ा लाया था, कोई शर्ट का कपड़ा लाया था, कोई पेन लाया था। और उसी इंस्टीट्यूट के अंदर 500, 150 पेरेंट, 250 बच्चा अंदर बैठा वेट कर रहा है, जिन पेरेंट्स की आंखों में ये उम्मीद है कि इस कॉलेज से पढ़ने के बाद मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। उस कॉलेज का ये ओरिएंटेशन है। और ऐसे ही कुछ हालात हर इंस्टीट्यूट के हैं जिसका भी नाम आपके मन में है। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसका मैं आपको, ये पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा, इतने किस्से हैं ऐसे ही। सर जो आपने इंसिडेंट बताई है, ये सुनकर ऐसा लगता है कि टीचिंग इज नॉट अ नोबल प्रोफेशन एनीमोर। अरे है सर, कैसी बात कर रहे हैं? टीचर बिल्कुल नोबल प्रोफेशन है, ऑन पेपर, भाषण में, तारीफ में। लेकिन नोबल प्रोफेशन वो होता है जिसमें आप गुर्बत में जीवन निकालिए, अपनी नौकरी को बचाते रहिए, पैसे की मांग मत करिए। गरीब बने पैसा रहिए। मांगेंगे तो लोग पूछेंगे सवाल आपसे कि टीचर को कितना पैसा चाहिए। टीचर की लाइफ थोड़ा ना होती है, तो टीचर को पैसा नहीं चाहिए। और मैं ये पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि हर टीचर बहुत अच्छा टीचर नहीं है। बहुत लिमिटेड टीचर हैं जो अच्छे टीचर बचे हैं और इंडस्ट्री में हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है सिर्फ पेपर में, बाकी कोई इस प्रोफेशन की वो इज्जत नहीं कर रहा जो उसको करनी चाहिए। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ। पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा। कैन यू इमेजिन, वहां बैठा था मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, और वो प्लेसमेंट का टाइम चला था, प्लेसमेंट टुवर्ड्स द एंड था। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हेड के सामने पेरेंट बैठा हुआ है और बोल रहा है कि मेरे बच्चे की प्लेसमेंट कैसे नहीं हुई। मैंने इस कॉलेज में फीस भरी है, और फीस भरते वक्त मुझसे कहा गया था कि उसको इतने का पैकेज लगेगा और ये कंपनी लगेगी। ये एक पेरेंट एक टीपीओ से तकादा कर रहा है, और मैं वहां बैठा दूसरी तरफ बैठ के मैं सुन रहा हूं
कि ये क्या बात हो रही है, और ये काफी देर तक जिरह चली कि मैं डायरेक्टर से बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं इससे बात करूंगा। उनके जाने के बाद टीपीओ मुझे बोलता है कि सर ऐसा मैं पिछले 6 महीने से डील कर रहा हूँ। पेरेंट्स यहाँ लड़ने आते हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी क्यों नहीं लगी। उनका बच्चा कितना पढ़ने में अच्छा है, क्लास में कितना पढ़ाया गया, उसे कितना आता है, ये सेकेंडरी है। कॉलेज में फीस भरते वक्त मुझसे कहा गया था मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। इस देश की स्थिति ये हो गई है कि स्टूडेंट को क्लाइंट बना दिया गया और टीचर को सर्विस प्रोवाइडर, और आप बोल रहे हैं नोबल प्रोफेशन। सर, एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने जीवन काल में अमूमन 22 से 24 साल तक टीचर के संपर्क में रहता है, फिर भी उसके अंदर टीचर बनने की चाह नहीं आती है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि किसी भी प्रोफेशन का चुनाव इस देश में तब होता है जब समाज उसकी तरफ झुक जाए, उसके बारे में बात करने लगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि एक बच्चा जो है 22-24 साल तक का सफर एक टीचर के साथ तय करता है, ठीक है, इसके बाद भी उसके अंदर टीचर बनने की जिज्ञासा नहीं आती। तो मैं इसके दो मुख्यतः कारण मानता हूं। पहला, कहीं ना कहीं एज अ टीचर वी फेल्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस दैट दिस इज द प्रोफेशन वेयर यू शुड बी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी बच्चा टीचर नहीं बनना चाह रहा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, सब बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वी आर योर फैन, एंड जो हमारे जीवन में हो गया आप ही वजह से हुआ, सब ये हुआ वो हुआ, पर कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि सर हम भी टीचर बनना चाहते हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि कहीं ना कहीं सफर में, 22-24 साल के सफर में कई ऐसे टीचर आए जिनका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहा बच्चे पर, और उसने ये मान लिया कि यार ये काम मुझे नहीं करना है। दूसरा, अगर आप बाहर से देखेंगे तो टीचिंग इज अ वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस प्रोफेशन, जहां एक ही चीज आप पढ़ा रहे हो, हर बार बच्चा नया आ रहा है, सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, नंबर सिस्टम और नंबर लाइन तो वही रहेगी, ज्योमेट्री वही रहेगी, अलजेब्रा वही रहेगी, तो बच्चे को लगता है एक ही चीज कितनी बार पढ़ाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि एक ही चीज को लगातार करने से आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं, पर उसमें वो देखता है मोनोटनी हो गई या ये बोरिंग हो गया। दूसरा, टीचर्स के अटायर को देख के वो इंप्रेस नहीं हो पाता। टीचर की जो लाइफ होती है वो बड़ी फ्लैम्बॉयंट नहीं होती, इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ। कितना भी फ्लैम्बॉयंट टीचर हो, फ्लैम्बॉयंट टीचर्स आपको कोचिंग सेटअप में मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सेटअप में अक्सर आपको टीचर्स मैक्सिमम सिंपल मिलेंगे, और बच्चे को चाहिए फ्लैम्बॉयंसी, ग्लैमर, एक्सपोजर, ट्रैवल, वो इस प्रोफेशन में कहीं है ही नहीं। तो जो उसका कोर है वो बच्चा पकड़ नहीं पाता। देखिए, मैं फिर भी ऐसा मानता हूं आगे चल के कहीं ना कहीं रियलाइज होता है और वो टीचिंग प्रोफेशन में आता है। खास तौर से आप मैक्सिमम आईआईटी टॉपर्स जो रहे हैं, आप उनका अगर कभी इतिहास खोल के देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम बिकेम द रिसर्चर और अ एजुकेटर इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो 22-24 साल का सफर तय करने के बाद भी इस इंडस्ट्री में ना आने की वजह मोनोटनी, बोरिंग, फ्लैम्बॉयंसी, एक्सपोजर नहीं है, ग्लैमर नहीं है, और सिंपल लाइफ है, और एक ही चीज आपको करनी है, जबकि उसका अलग आनंद होता है। अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। पर बच्चा उतना दूर तक देख नहीं पाता और शायद टीचर उसको दिखा नहीं पाता। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शुड बिकम अ टीचर?